Assalamu alaikum everyone. I welcome you all once again to the Society of Free Educators. This is session number 28 from the Communication Skills Development and Learning class. So let's have a quick recap of what we have learned earlier. In the previous session, we understood the difference between still, already, and yet. So still is something that is still is used to describe an action which is going on and has not finished yet. Already is used to describe an action which has finished, but you expected it to finish way later. Something that has finished way beyond your expectation or before you expect it to finish, then we use already. And yet is used to describe an action which has not finished yet, but you think or you believe it has finished. And then we understood the difference between don't mind and doesn't matter. Then we understood a new meaning for the word across. uh, the new meaning for the word across was to be familiar with something across the plan or across the idea, across the food, across the context. So this is how you get familiar with something. So the new meaning of the word across is familiar. And then in business English section, we understand the language for making a pitch. And in word root analysis, we understand these words juven, kilo, and kinet, or kinematics. And in the last section, that the grammar portion, we continued with the rules of active and passive voice. And today we are going to complete active and passive voice because only uh, past models are left. And there are four past models which we have to study, but once we have already studied. So supposed to was the past is the past model which we have already studied. It is very similar to the present model, that is supposed to. Now, coming to the uh, first section of verbal skills, we are going to, as I told you earlier, that we are going to learn with the news from now on. So I have cut out a piece of a news section, which is called "Snakes in the Cafe." Uh, so these are all four snakes. Let me give you a pretext of what has happened. So there is a cafe in Tokyo where a gentleman, the owner of that cafe, has introduced 35 snakes into the cafe, and everyone has a craze of going to that cafe, playing with those snakes and sipping coffee, tea, and eating their lunch or dinner. So this is something that is going on in Tokyo, and I cut out some portion of that news article and formulate this session for today. As I told you that this is just a pretext of what we are going to do in the upcoming next sessions. तो ये पूरा न्यूज़ तो नहीं है, बट उसका थोड़ा सा पोर्शन है जिसको हम आज से शुरू करेंगे, और आप में से किसी एक को ये पूरा का पूरा न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा. सी, द येलो पोर्शन इज द हेडलाइन, and the green portion is the news, the reported news. So who among you will read? एक तो आप में से किसी एक को ये पढ़ना पड़ेगा, और दूसरी चीज आप सबको ध्यान रखना है कि वो क्या पढ़ रहा है, बिकॉज देर आर क्वेश्चंस आफ्टर दैट. इसके बाद दो या तीन या चार क्वेश्चंस होंगे इसी से रिलेटेड, और आज बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सीधा वर्ड, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस हैं. बट लेटर ऑन वी विल हैव फुल पैसेजेस एंड लॉट मोर क्वेश्चन. सो इस एक्सरसाइज से होगा क्या, एक तो वर्बल स्किल्स आपकी बढ़ जाएंगी, दूसरा जो एक्टिव लिसनिंग की हम बात करते थे ना, वो इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा. तो आज कौन कौन अवेलेबल है और उसमें से कौन इसको पढ़ना चाहेगा? Is there anyone who wants to read it? Yes, sir. Okay, Mariam, but make sure you read it like the news anchors read it. एक तो लाउड बोलना है और जैसे न्यूज़ पढ़ी जाती है उस तरह से. So start. Yes. A relaxing place for a coffee, or is it? Have you sipped a drink in the company of 35 snakes? This cafe, which has just opened in Tokyo, is not for the faint-hearted. None of them are venomous. Any customers can get up close and personal with the reptiles. The cafe's owner says he is interested in conversation and hopes customers will realize the animals are worth saving, even though they often have a bad reputation. Very good. So the cafe's owner says he is interested in conservation, not conversation. वो बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इन जानवरों को बचाने में इंटरेस्टेड है. So
he is interested in conservation. ठीक है, so everyone is clear about what this news is all about. सबको पता लग गया क्या है, because इसके बाद questions आएंगे and there will be very small questions. Is there anyone who has to reread it, or you need some more time to learn it? सबने पढ़ लिया इसको? Okay, so going further, इसके अब questions हम देखते हैं क्या है. So the first question is, how many snakes are there in the cafe? So मरियम आप नहीं बताओ because you have read it. मरियम को छोड़ के कोई भी बता सकता है. 35. Okay, there were 35 snakes in the cafe. The next is, where is the cafe? Tokyo, right? And snakes in the cafe are venomous. So is this true or is this false? ये कौन बोला true? False. It's false. They were not venomous. There are 35 snakes in the cafe in Tokyo, and all of them are not venomous. No one among them is venomous. उनमें से कोई भी जहरीला नहीं था, सबका जहर निकाला हुआ था. And the last question for this section is, why is the cafe opened? ये कौन बताएगा कि ये कैफे खोला क्यों गया? Who will say? Faisal? The owner is for the conservation of the snakes, and the snakes have the bad reputation. So Yes, that's to yes, clear yes, from the. yes, that's correct. So this cafe was open in order to change the reputation of snakes. Snakes have a very bad reputation there, and the owner is very much interested in conservation of those snakes. So that's why he opened up this cafe where there are 35 snakes. All of them are non-venomous, and people can come there, eat together with the snakes. So this is how we are going to proceed from these upcoming sessions. अब जो भी session आएगा उसमें ऐसे ही एक section होएगा जिसमें ऐसे आप में से किसी एक को पढ़ना पड़ेगा, and all of you have to listen very carefully about what is going on, what the other guy is reading, and as soon as we finish the reading there will be questions. अब आज वाले तो बहुत simple थे, हर एक question का answer हर एक line था, but when there will be full passages, you will have to understand, you will have to keep your mind open, and you will have to listen very actively, very carefully कि भाई चल क्या रहा है, ताकि अगर आपको एग्जैक्ट आंसर ना मालूम हो लेकिन उसके आगे पीछे की स्टोरी मालूम होती है. एंड दिस इज हाउ यू मैनिपुलेट एन आंसर. आप कैसे आंसर बनाते हो ये डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज कितनी आई, आपने कितनी अब्जॉर्ब किया, और इसी स्किल को हम आगे बढ़ाएंगे. लेकिन आज का जो दूसरा सेक्शन है वो है न्यू मीनिंग फॉर एन ओल्ड वर्ड. अब वर्ड जो है दैट इज अबाउट. आई लिव हियर और आई गिव देयर, गिव हियर. सो अबाउट का मीनिंग क्या है? कन्वेंशनली हम क्या मीनिंग लेते हैं अबाउट का? anyone has any idea or anyone wants to explain? रक्षंदा या मरियम, फैसल, इरफान? हिंदी के बारे में. ठीक है, so about is concerned. about को अगर हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो हम बोलेंगे something that is concerned, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके लिए बात की जाए. So usually means concerning or expressing position or movement within a particular area. अब ये position or movement within a particular area ये भी about इस चीज को explain करने के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे about 5 meters away there is a restaurant, या about 50 meters away there is a shop. तो इस तरह से आप एक पोजीशन बताते हो एक पर्टिकुलर एरिया में, उस टाइम भी अबाउट यूज होता है. बट इसका एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है हेयर और समवेयर हेयर, यहाँ या कुछ कुछ यहाँ, लगभग इधर या आसपास, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं. इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. इज अहमद अबाउट टुडे. अब इज अहमद अबाउट टुडे है ना, इसको अगर आप गूगल सर्च करो ये बड़ा अजीब सर आपको वो देगा एक ट्रांसलेशन. बट इज अहमद अबाउट टुडे मीन्स क्या अहमद आज यहाँ है, हमारे बीच है अहमद. इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ आसपास अहमद है आज,
सेकंड इज हाय, इज सू अबाउट? सू एक बंदी का नाम है, तो क्या सू है यहाँ? जस्ट नीड टू गिव हर सम फाइल्स, तो मुझे उसको कुछ फाइल्स देनी है। इसी तरह थर्ड है विल यू बी अबाउट दिस इवनिंग? क्या आप इवनिंग में आज मौजूद रहोगे, अवेलेबल रहोगे? आई वॉन्ट टू आस्क ए बिग फेवर, मुझे आपसे एक बहुत बड़ा काम करवाना है, मुझे आपसे एक एहसान चाहिए बड़ा। देयर इज नो वन अबाउट, इट्स अ बिट स्केरी, यहाँ आस पास कोई नहीं। अब देखो यहाँ जो अबाउट है ना, ये अबाउट हो गया आस पास, यहाँ आस पास कोई नहीं है और इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। जैसे हम किसी जंगल वंगल में चले जाएं या किसी खाली बिल्डिंग में, खंडर जैसी बिल्डिंग में चले जाए ना, तो अक्सर हम बोलते हैं यार यहाँ आसपास कोई है नहीं, तो डर सा लग रहा है, शांति सी अजीब सी है। सो देयर इज नो वन अबाउट, इट्स अ बिट स्केरी। और इसका एक और है डोंट टॉक लाइक दैट, देयर आर चिल्ड्रन अबाउट। तो इस तरह से बात मत करो, बच्चे यहाँ हैं। जैसे कई बार होता है बड़े आपस में झगड़ पड़ते हैं, जो कि होना तो नहीं चाहिए बट होता है, ऑब्वियसली हर एक फैमिली में होता है। सो बड़े आपस में झगड़ पड़ते हैं और बच्चे वहां होते हैं, या फिर कुछ बड़ों को आदत होती है कई सारे वर्ड्स यूज करने की जो हम पब्लिक में यूज नहीं करते, अब्यूसिव को यूज करने का, और वो किसी अब्यूजिव मैनर में नहीं यूज करते वर्ड्स को, वो उनकी आदत बन चुकी होती है। तो ये जो आदत बन चुकी होती है उनकी, उस समय हम बोलते हैं बड़ों को कि आप प्लीज ये वर्ड्स यहाँ मत बोलो, यहाँ पर बच्चे हैं। सो डोंट टॉक लाइक दैट, देयर आर चिल्ड्रन अबाउट। इस तरह से बात मत करो, यहाँ बच्चे हैं, मौजूद हैं, या बच्चे यहाँ हैं। ये समझ आया सबको कि अबाउट का नया मीनिंग क्या है, ये किस तरह से यूज होता है? Is there anyone who has any question or doubt? चलो नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं हम, बिजनेस इंग्लिश सेक्शन में। इसमें है लैंग्वेज फॉर गिविंग ए फीडबैक। अब फीडबैक से आपका क्या मतलब है? फैसल आप बताओ, फीडबैक क्या है? किसी चीज के बारे में अपनी राय देना। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग। ठीक है, रक्षंदा। चलो वो है ही नहीं आज शायद, either she is not, I don't know what has happened to her device। और कौन है? नजाकत, फीडबैक क्या होता है? ओके, वो भी नहीं है। मरियम? Giving your opinion about something is called feedback. हाँ चलो ये भी ठीक है, लगभग सी फैसल एंड मरियम, यू बोथ आर एक्चुअली करेक्ट। फीडबैक हैज डिफरेंट मीनिंग्स, एंड फीडबैक देने का ना एक बहुत फॉर्मल और बहुत पोलाइट तरीका होता है। हमेशा याद रखना, फीडबैक को कभी भी आप रूड वे में नहीं देना, सामने वाला उसको फीडबैक नहीं समझेगा, सामने वाला उसको जजमेंट समझेगा फिर। तो जैसे एक सिंपल सी लाइन है, आई एम अ लिटिल बिट कंसर्न्ड अबाउट। सो फीडबैक इज ऑल्सो गिविंग यू अ कंसर्न अबाउट समथिंग, कि आप किसी चीज को रिलेटेड आप क्या सोच रखते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फीडबैक। तो ये जो सेंटेंस है ना, आई एम अ लिटिल बिट कंसर्न्ड अबाउट, यहाँ पर आप अपनी सोच जाहिर करते हो सामने वाले को, या अपनी वरी दिखाते हो कि यार मैं ज्यादा इस चीज से कंसर्न हूँ, या मेरे को ज्यादा फिक्र इस चीज की है। वैसे एक और सेंटेंस है, यू नीड टू वर्क ऑन। अब ये तो सीधा वन ऑन वन फीडबैक है। जस्ट गिव मी 1 second, देयर इज समवन इन द चैट। योर वॉइस इज लैकिंग टुडे, मे बी आई एम फेसिंग दैट। आई थिंक यू आर ओनली वन हु इज फेसिंग दिस इशू, बिकॉज अभी तो किसी और ने बोला नहीं। So you can have the recording। So you need to work on, अब ये वाला जो phrase है you need to work on, this is a very formal, very typical feedback that is oftenly given in offices or workplaces। और इसके बाद है perhaps you should think about। अब ये वाला जो feedback है ना, perhaps you should think about, ये अक्सर तब दिया जाता है जब कोई काम हो जाए और उस काम के नतीजे के मुताबिक आपको फीडबैक देना है। जैसे मेरे को घर वालों ने मना किया कि भाई उस जगह मत जाओ, और मैं चला गया वहां, और फिर सबने मुझे डांटा, और फिर मुझे कोई फीडबैक देगा कि यार यू शुड हैव नॉट गॉन देयर, परहैप्स यू शुड हैव थिंक अबाउट इट अर्लियर बिफोर गोइंग देयर। तो काम, जब मुझे ये बोलना है ना कि आपको काम करने से पहले इस चीज के बारे में सोचना चाहिए था, तब मैं ये फ्रेज यूज करता हूँ, परहैप्स यू शुड थिंक अबाउट। ओ यार, तो ये चीज अब तब इस्तेमाल होती है। और इसके बाद है एवरीथिंग इज ग्रेट एक्सेप्ट। अब ये जो है एवरीथिंग इज ग्रेट एक्सेप्ट, और यू आर ग्रेट बट दिस नीड्स टू बी डन, और दिस नीड्स टू बी चेंज्ड, या फिर हम ऐसे बोलते हैं
The presentation was great, but the middle portion of the presentation where the deck was created was somewhat awkward. या फिर हम बोलेंगे the project is absolutely fine, only the conclusion या फिर only the references are required to be made like this. The references needs to be made like this, need to be made like this. इस तरह से ये जो है ना everything is great except या you are great but this needs to be done, इसको हम कहते हैं sugar coated feedback. शुगर कोटेड फीडबैक में क्या होता है, आप डायरेक्टली नहीं बताते हो सामने वाले को कि भाई दिक्कत क्या है या फिर आपका ओपिनियन क्या है या फिर आप किस चीज के लिए कंसर्न हो. आप उसको पहले खुश करते हो कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये सबसे अच्छा गया, प्रेजेंटेशन बहुत मस्त गई, प्रोजेक्ट बहुत मस्त गया, स्पीच बहुत अच्छी थी, मगर अगर तुमने इसको ऐसे कहा होता तो ज्यादा और ज्यादा अच्छा होता. सो दिस इज शुगर कोटेड फीडबैक. और अक्सर ये जो ट्रेंड है ना शुगर कोटिंग का, ये हम इसको भी हम ऑफिस में ज्यादा देखते हैं जबकि होना नहीं चाहिए. सो शुगर कोटिंग इज लाइक मेकिंग ए बर्गर और ए सैंडविच. क्या होता है कि असली चीज जो होती है वो सेंटर में होती है, उसके ऊपर एक अलग लेयर होती है और उसके नीचे एक अलग लेयर होती है. तो अगर आप अपना फीडबैक किसी को इस तरह से दे रहे हो, जैसे किसी कोई आपका फ्रेंड है जिसने आपका असाइनमेंट बनाया है और उसने बड़ी खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा है उसको, और बस वो एक चीज मिस कर गया उसमें से, और अब आप उसको समझा रहे हो कि यार देख तूने बड़ा खूबसूरत हैंडराइटिंग लिखा है, मैं शुक्रगुजार हूँ तेरा कि तुमने इसको पूरी रात लगा कर बनाया, मगर इसमें ये वाला पेज नहीं है या फिर ये वाला टॉपिक के बारे में लिखना तुम भूल गए. दिस इज शुगर कोटिंग. क्या आप मुद्दे की बात पर आओगे लेकिन उससे पहले तारीफें करोगे सामने वाले की. So everything is great except yeah you are great but needs to be changed या this needs to be done. ये शुगर कोटिंग होती है. So I hope ये सबको समझ आया. Is there anyone who wants to ask something about it? Is there anyone who wants to say something about it or ask something about it? Okay. तो चलो अब चलते हैं हम वर्ड रूट एनालिसिस एंड प्रोनाउंसिएशन की सेक्शन में. So the first word is lab जो हमने लास्ट टाइम छोड़ दिया था. The second is lact or lacto. The third is later. The fourth is lex. Just give me 1 second. Someone has unmuted his mic. Okay. तो लैब का देखते हैं हम क्या है. लैब जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू वर्क. सो कोलैबोरेट इज वर्क विद द पर्सन, इलैबोरेट इज टू वर्क आउट द डिटेल्स, लेबोरियस इज रिक्वायरिंग ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क. वैसे ही लेबोरेटरी इज जहाँ ए प्लेस वेयर यू वर्क. तो ये समझ आया सबको. लेबोरियस वर्ड याद रखना, ये बड़े काम का वर्ड है. Something that requires a lot of hard work is called laborious. चलो सेकेंड वर्ड की तरफ चलते हैं हम, दैट इज लैक्ट और लैक्टो. सो लैक्ट और लैक्टो ये मिल्क से रिलेटेड होते हैं. सो लैक्टोस इज शुगर कंटेंट इन द मिल्क एंड लेकेट इज टू गिव मिल्क. बच्चे को दूध पिलाने को लेकेट कहा जाता है या नर्सिंग कहा जाता है. जैसे हम बोलते हैं ना मदर्स नर्स देयर चाइल्ड, तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है. या लेकेट, मदर्स लेकेट देयर चाइल्ड टू गिव मिल्क. क्लियर है? ओके. सो अब आते हैं लेटर पे. लेटर का मतलब होता है साइड. देखो अक्सर हम सोचते हैं लेटर का मतलब है दूसरा, बट लेटर का एक्चुअल मीनिंग होता है साइड. जैसे बाइलेटरल. बाइलेटरल इज ऑफ और इन्वॉल्विंग टू साइड्स. कि बाइलेटरल एक ऐसी चीज है जो दो या दो साइडों को इन्वॉल्व करती है या दो साइडों के लिए होती है. जैसे कॉइन जो है उसके दो हिस्से होते हैं. कई सारे मुद्दे होते हैं. अभी जो ये इंडिया चाइना का मुद्दा चल रहा है दैट इज बाइलेटरल इकोनॉमिक इशू. कि इंडिया सारी चीजें चाइना की बंद नहीं कर सकता, चाइना सारी चीजें इंडिया की बंद नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स अ बाइलेटरल इशू, बाइलेटरल इकोनॉमिक इशू. दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इसमें. और वैसे ही यूनिलेटरल इज इफेक्टिंग वन साइड ऑफ समथिंग, जिसमें एक ही चीज साइड इन्वॉल्व हो. जैसे अंदरूनी मामला जिसको हम बोलते हैं ना, ये मुल्क के अंदरूनी मामले हैं, दैट इज यूनिलेटरल. इज इट क्लियर? ओके. सो लेक्स लास्ट वर्ड है आज का. लेक्स होता है वर्ड, लॉ या रीडिंग. लेक्सिकोलॉजी इज द स्टडी एंड द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स की हिस्ट्री
और वर्ड्स की स्टडी को लेक्सिकोलॉजी कहा जाता है। और एलेक्सिया होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड। जैसे पढ़ने की, इंसान पढ़ना भूल जाता है, उसको पढ़ने नहीं होता है अपने लाइफ में, वो बहुत पढ़ा लिखा होता है, बहुत चीजें पढ़ता है, बट एक एज पे आकर उसको एलेक्सिया हो जाता है। सो एलेक्सिया इज रिलेटेड टू डायलेक्सिया। डायलेक्सिया इज लॉस ऑफ एबिलिटी टू डू एनीथिंग, इंसान को याद नहीं रहती चीजें डायलेक्सिया में। एलेक्सिया में उसको सिर्फ पढ़ना याद नहीं रहता, उसको पता नहीं लगता कि पढ़ना कैसे है इसको। ही कैन सी व्हाट इज रिटन बट ही कैन नॉट मैनिपुलेट व्हाट इज रिटन। क्लियर है सबको? ओके, सो कमिंग टू द ग्रामर सेक्शन नाउ। लास्ट है आज एक्टिव पैसिव का, जिसमें हम रूल्स पढ़ेंगे पास्ट मॉडल्स के। सो चार पास्ट मॉडल्स होते हैं, ought to, should have, या और might have, और was supposed to, या were supposed to, या फिर हम इसको सिंपल बोलेंगे be supposed to। लेकिन हम बी सपोज टू को हम पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज हमने उसको ऑलरेडी पढ़ लिया है। जैसे हमने बी सपोज पढ़ा था उसी तरह बी सपोज टू है। तो फर्स्ट रूल्स में यही है चेंजिंग करने का। तो बेसिक फंडा ये है कि जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है उसको आप पैसिव सब्जेक्ट बना लोगे, और जो भी आपका पास्ट मॉडल है उसको साथ आप हैव बीन और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे। जैसे फर्स्ट है शुड हैव, या शुड नॉट हैव, या शुडंट हैव जिसको हम कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। द स्टूडेंट शुड हैव लर्न द वर्ब। अब ये पास्ट फॉर्म है, द स्टूडेंट शुड हैव लर्न द वर्ब्स। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था द स्टूडेंट शैल हैव लर्न द वर्ब्स। इसको कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे? द वर्ब्स शुड हैव बीन लर्नड बाय द स्टूडेंट्स। तो should have as it is, should as it is, and have been is the thing that we have to add, and learn का past participle form learned ही होता है। और फिर इसके बाद है the children should not have broken the window। बच्चों ने वो खिड़की तोड़नी नहीं चाहिए थी। The window should not have been broken by the children। वो खिड़की बच्चों से टूटनी नहीं चाहिए थी। सो क्लियर है यहाँ तक? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ought to। अब ought to का नेगेटिव होता नहीं है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, बहुत रेयरली, बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ought to learn the verbs, और इसी का पैसिव होता है द verbs ought to have been learned by the students। ये समझ आ गया सबको? चलो, सो नेक्स्ट इज might and might not। देखो अब जैसे मे और मे नॉट था ना, उसी तरह माइट एंड माइट नॉट है, बट इसमें सिर्फ एक ही है कि इसमें हैव बीन लगेगा साथ, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्रेजेंट में भी थी, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पास्ट मॉडल्स में भी होती है। द कंपनी माइट हैव ऑफर्ड हिम ए न्यू जॉब। इसका पैसिव है ए न्यू जॉब माइट हैव बीन ऑफर्ड टू हिम बाय द कंपनी। कंपनी ने हो सकता है उसको नई नौकरी दी थी, और इसका बनेगा उस नई, एक नई नौकरी उसको कंपनी के द्वारा दी गई होगी। वैसे ही द स्टूडेंट्स माइट नॉट हैव रिटन द पेपर। स्टूडेंट्स ने हो सकता है पेपर नहीं लिखा हुआ होगा, लेकिन पास्ट वाला होगा। दिस इज नॉट फ्यूचर वाला होगा, दिस इज पास्ट वाला होगा। और इसका पैसिव बनता है द पेपर माइट नॉट हैव बीन रिटन बाय द स्टूडेंट्स। तो पेपर स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं लिखा गया होगा। यार इसको ट्रांसलेट कर लेना हिंदी में, मेरे को करना नहीं आ रहा है, बट यू अंडरस्टूड ना? इस इफ लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। किसी को पूछना है इसके बारे में कुछ? Okay, so we shall keep it this much. We shall continue in the next session. As always, you guys have been very wonderful, very cooperative, and I hope from the next time every one of us will participate in learning with the new section, जो कि हमारी नई section है। So see you day after tomorrow जब हमारा session है। Bye bye everyone. Have a good time.